Assalamu alaikum. My dear student, today our topic is general characteristics of fishes. First of all, we will take the fish. Fish is a cold-blooded aquatic vertebrate which respire by means of gills and move by the help of fins. Cold-blooded means fish cannot maintain its body temperature. Its body temperature fluctuates with the temperature of surrounding environment. Number of species. Round about there are 22,000 different fish species, and out of these 22,000 different fish species, 95% are the bony fishes, also known as osteichthyes. 50 species of jawless fishes, which are also known as agnatha or cyclostome, while 800 species of cartilaginous fishes, which are also known as chondrichthyes. Next one, habitats. According to habitats, fishes are aquatic organisms found in both the freshwater as well as marine water. Feeding habits. According to feeding habits, fishes are divided into four types, which are herbivorous fishes, carnivorous fishes, omnivorous fishes, and parasitic fishes. Herbivorous fishes are those fishes which feed on the aquatic vegetation. हर्बिवोरस फिशेज हमारे पास ऐसी फिशेज होती है जो कि एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर फीड करती है, और इस तरह की फिशेज के एग्जांपल में हमारे पास आता है ग्रास कार्प हो गया और कॉमन कार्प हो गया. जिस तरह कार्निवोरस फिशेज आर दोस विच फीड ऑन द फ्लैश, यानी ये हमारे पास क्या होता है, फ्लैश ईटर होते हैं, और इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है ट्राउट. ओमनिवोरस फिशेज आर दोस विच फीड ऑन बोथ द फ्लैश एज वेल एज एक्वेटिक वेजिटेशन. ओमनिवोरस फिशेज हमारे पास ऐसी फिशेज होती है जो कि एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर भी फीड करती है और उसी तरह दूसरे एनिमल के फ्लैश के ऊपर भी फीड करती है. एंड द एग्जांपल ऑफ सच फिश इज माशेर. व्हाइल द फोर्थ कैटेगरी इज पैरासिटिक फिशेज. पैरासिटिक फिशेज अटैच देयर सेल्फ टू द हॉस्ट बॉडी and suck the blood of the host in order to get the digested food material from the host body, and the example of such fishes are the lamprey and hag fishes. Size. The size of fishes is highly variable. For example, the smallest size freshwater fish is Pandaka pygami. The length of this fish range from 10 to 11 millimeter. While the smallest marine fish is Trimatus nanus, the length of which range from 8 to 10 millimeter. Similarly, the largest freshwater fish is Hasso, which range in length from 4 to 5 meters, while the largest marine fish is Rhincodon species, which range in length from 15 to 18 meter. Age. The age of different fishes is also variable. For example, the gobides fishes live for 1 year and die after the spawning. यानी जो गोबिडी हमारे पास फिशेज होती है तो ये तकरीबन इनकी लाइफ स्पेन जो है वो 1 ईयर तक होती है, एंड आफ्टर द ब्रीडिंग या स्पॉनिंग जो है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. सिमिलरली कार्प्स, शीट फिश एंड पाइक फिश लिव अप टू 80 ईयर, while sturgeon live up to 100 years. Body shape. Normally, the body shape of the fish is streamlined, but different fishes exhibit numerous diversity in the shape, such as arrow shape. और arrow shape में हमारे पास जो fish आती है वो हमारे पास क्या है, gar pike, and this is the figure of gar pike. Next one is laterally flattened shape, and the example of laterally flattened shape is common bream, and this is the picture of common bream fish. While the third one type according to the body shape is torpediform, and the example of such shape fish is mackerel, and this is the picture of mackerel fish. The next one is flat fish type, and the example is flounder, and this is the picture of flounder fish. The next one is ribbon shape, and the example of ribbon shaped fish is king herring, and this is the picture of king herring fish. Next one is snake shape, and the example of snake shape fish is eel, and this is the picture of eel. While the next category is spherical shape, and the example of spherical shape fishes is globe fish,
and this is the picture of the globe fish. While the last category according to the shape is flattened shape, and the example of flattened shape fishes is skates, and this is the picture of skate fish. So these are the various categories of fishes according to the body shape along with the example and pictures. Body symmetry. Symmetry means plane of the body division. In fishes, the symmetry is bilateral. Bilateral symmetry means we can divide the fish body into two equal parts by only one plane. बायलेटरल सिमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि हम फिश की बॉडी को दो इक्वल पार्ट में सिर्फ एक ही प्लेन की मदद से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. जिस तरह इस डायग्राम में अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये लेंथ वाइज हम इसकी बॉडी को सिर्फ इस एक प्लेन से दो इक्वल पीसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. और जब हम किसी एनिमल की बॉडी को सिर्फ एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर सके, ऐसे सिमेट्री को हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री. सो इन फिशेस द सिमेट्री इज बायलेटरल. नेक्स्ट वन इज बॉडी डिवीजन. द फिश बॉडी इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज हेड, ट्रंक and tail. This diagram of the fish represent all these three parts, head followed by the trunk which is followed by the tail. So in fishes the neck is absent. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फिश की बॉडी को सिर्फ हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास हेड है, ट्रंक है और टेल. लेकिन फिशेस के अंदर नेक जो है वो एब्सेंट होती है. माउथ शेप is good clue to what fish eat. The larger it is, the bigger the prey it can consume. क्या मतलब है इसका कि हमारे पास फिश के माउथ को देखकर हमें ये अंदाजा हो जाता है ये किस तरह के फूड जो है वो लेती है. अगर इसके माउथ का साइज जो है वो बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये लार्ज साइज के प्रे को ऊपर क्या करती है, फीड करती है. A fish mouth type may be broadly divided into three types. यानी जो फिशेस के माउथ का जो शेप है उस बेस पे हम इसको तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. एंड द फर्स्ट वन इज टर्मिनल माउथ. टर्मिनल माउथ इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ हेड एंड पॉइंट फॉरवर्ड. इन सच टाइप ऑफ माउथ बोथ द जॉज हैव सेम लेंथ, एंड दिस टाइप ऑफ माउथ इज फाउंड मोस्टली इन मिड वाटर फीडर्स. However, they can feed at any location. टर्मिनल माउथ जिन फिशेस के अंदर पाया जाता है वो हेड के क्या होता है, उसके मिडल के अंदर होता है, ठीक है. और टर्मिनल माउथ के अंदर जो जॉज होते हैं, बोथ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, उन दोनों का लेंथ है वो क्या होता है, सेम होता है. और इस तरह की फिशेस हमारे पास जो होती है जिनमें टर्मिनल माउथ पाया जाता है वो मिड वाटर फीडर्स होते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिड वाटर के ऊपर अंदर ही हमेशा क्या करेंगे, फीड करेंगे. ये किसी भी लोकेशन के ऊपर वाटर बॉडी के अंदर फीडिंग कर सकते हैं. द सेकेंड कैटेगरी इज सुपीरियर माउथ. इट इज ओरिएंटेड अपवर्ड एंड इन दिस केस द लोअर जॉ इज लार्जर देन द अपर जॉ, एंड दिस टाइप ऑफ माउथ इज फाउंड इन द सरफेस फीडिंग फिशेज. यानी जो हमारे पास सुपीरियर टाइप ऑफ माउथ जिन फिशेस के अंदर पाया जाता है, ऐसे फिशेस के अंदर जो लोअर जॉ उनका होता है उसका लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अपर जॉ. और ये जो हमारे पास सुपीरियर टाइप ऑफ माउथ है ये सरफेस फीडिंग फिशेस के अंदर पाया जाता है. द थर्ड वन इज इंफीरियर माउथ. इट इज टर्न डाउनवर्ड. इन सच टाइप ऑफ माउथ द लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर जॉ, एंड सच टाइप ऑफ फिशेज आर बॉटम फीडिंग फिशेज. यानी जो हमारे पास इंफीरियर टाइप ऑफ माउथ जिन फिशेज के अंदर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बॉटम फीडर फिशेज होती है, ठीक है. और इन फिशेज के अंदर जो लोअर जॉ होता है इट इज शॉर्टर एज कंपेयर टू द अपर जॉ. एंड दिस डायग्राम क्लियरली इंडिकेट द थ्री टाइप ऑफ माउथ इन डिफरेंट फिशेज. द फर्स्ट वन रिप्रेजेंट द टर्मिनल माउथ. As you seen that it is present in the middle of head and the length of both jaws are equal. The second one represents superior mouth, in which the length of lower jaw is more as compared to the upper one, while the third one represents the inferior jaw, in which the length of lower jaw is less as compared to that of upper jaws. Next one, eyes.
All the fishes contain pair of eyes, and by the help of eyes fish can detect different types of colors. Fish eyes are more rounded than in mammal because of the refractive index of water, and focus is achieved by moving the lens in and out, not distorting it as in mammals, while there is no eyelids in the fishes. Nostrils. All the fishes contain pair of nostrils, and these nostrils are used to detect odor in water and can be quite sensitive. In fishes like eels and catfish, they have particularly well developed sense of smell among different categories of the fishes. Barbels. Barbels are whisker-like organs found near the mouth in certain fishes. And these barbels are the sensory organ that help the fish to locate the food. नहीं बार्बल्स हमारे पास जो है कुछ फिशेस के अंदर जो है माउथ के इर्द गिर्द हेयर लाइक जो है या विस्कर लाइक हमारे पास क्या होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं जिस तरह इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें और इन बार्बल्स का फंक्शन क्या होता है ये सेंसरी ऑर्गन के तौर पर फिश के अंदर एक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू लोकेट द फूड. Lateral line system. Lateral line is a jelly-filled tube or canal found just below the skin. It is usually visible as a faint line along the lengthwise on each side of the body from operculum to the base of tail. It opens to outside by a series of tiny pores. While this lateral line system helps the fish to perceive water movement and pressure gradient, prey detection, predator avoidance, schooling behaviors, intraspecific communication as well as station holding. अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये लाइन जो हमारे पास फिश की बॉडी के सेंटर के अंदर है दिस लाइन रिप्रेजेंट द लेटरल लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम द अपरक्यूलम and continues in the mid section of body up to the caudal fin or tail of the fish. And this line, lateral line, act as a sensory organ in the fish and perform different type of function in the different fishes as mentioned above. Next one are scales. In most of the fishes, the body is covered by scales such as placoid scales, cycloid scale, ctenoid scales and cnide scale. This picture represents the different types of scales found in different fishes. For example, the A represent placoid scales, B represent cnide scale, C represent cycloid scale, while the D represent ctenoid scale. In addition to this, there are certain group of fishes which do not possess scale. इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास ग्रुप्स है फिशेस के जिनके अंदर स्केल जो है वो नहीं होते, उनमें स्केल एब्सेंट होते हैं, लाइक द जॉलेस फिशेस जिसको हम इग्नाथा कहते हैं. इसी के साथ साथ एक और ग्रुप है हमारे पास फिशेस की जिसको हम क्या कहते हैं, कैट फिशेस. दे आल्सो लैक फ्रॉम द स्केल एंड देयर स्किन इज नेकेड. नेक्स्ट वन आर फिन्स. Fins are appendages used by fish to maintain its position, swimming and change in direction of movement. फिशेस के बॉडी के अंदर फिन्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी मदद से वाटर के अंदर फिश अपनी पोजीशन को मेंटेन करती है, वाटर के अंदर स्विमिंग करती है और स्विमिंग के दौरान अपने मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करती है बाय द हेल्प ऑफ फिन्स. इन फिशेस fins are mainly divided into two types. These two types are paired fin and unpaired fin. First of all, we will take the paired fin. Those fin which occur in the form of pairs, यानी ऐसे फिन जो फिश के बॉडी के अंदर पेयर्स के फॉर्म में होते हैं उनको हम पेयर्ड फिन कहते हैं, लाइक पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन. While the second types are unpaired fin, those fin which occur singly in the fish body, यानी ऐसे हमारे पास फिन जो फिश के बॉडी के ऊपर एक एक पाए जाते हैं वो पेयर के फॉर्म में नहीं होते. एंड द एग्जांपल्स ऑफ सच फिन्स आर डॉर्सल फिन्स, एनल फिन एंड caudal fin. This picture represents the location of different types of fins on the fish body. The fin which is found just behind the operculum, it is known as pectoral fin, which fall under the category of paired fin. While the fin which is found
below the pectoral fin on ventral side of the body are called pelvic fin, and these are also included in the paired fin category. While the fin which is located on dorsal side of the body is called dorsal fin, and the fins which is located just behind the anus, it is known as anal fin. While the third fin which is present at the end of the tail or at the posterior end of the body is known as tail fin or caudal fin, which is included in the category of unpaired fin. This caudal fin is most important fin in the fish body because it play important role in the movement or locomotion of the fish. Next one are gills. Gills are the multifunctional organ in the fish body which involve in different function like gaseous exchange, osmoregulation, ammonia excretion, modification of circulating metabolites as well as immune defense. This diagram represents the gills of fishes which is present below the operculum. Gills open directly exterior in cartilaginous fishes, while in bony fishes these are covered by a thin flexible bony structure known as operculum or gill cover. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के दरमियान एक डिफरेंस प्रेजेंट है. जो हमारे पास बोनी फिशेस है उनके गिल्स के ऊपर जो है वो एक कवरिंग प्रेजेंट है, बोनी कवरिंग है फ्लेक्सिबल, जिसको हम अपर्क्यूलम या गिल कवर कहते हैं. लेकिन दूसरे साइड पे अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस को देखें तो इनके जो गिल्स है वो डायरेक्टली ओपन होते हैं इनटू दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट as they are not covered by the operculum. It means that in cartilaginous fishes the operculum is absent. The operculum is consist of three bones, that is opercular bone, subopercular bone and interopercular bone. This figure represents the operculum in the bony fishes. Swim bladder. It is an elongated thin wall gas filled sac-like structure located in the abdominal cavity between the kidneys and viscera. The swim bladder shows many variation in different group of fish species such as number 1, in jawless fishes and cartilaginous fishes the swim bladder is totally absent while present in all the bony fishes. अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर के हवाले से क्या है डिफरेंस प्रेजेंट है कि जो हमारे पास प्रिमिटिव फिशेस है जिनको हम जॉलेस फिशेस कहते हैं और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टिस फिशेस जिनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, इनके अंदर जो स्विम ब्लैडर है वो एब्सेंट होता है. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें ऑस्ट्रिक्टिस को, जिसको हम क्या कहते हैं बोनी फिशेस कहते हैं, बोनी फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट है. इन प्रिमिटिव बोनी फिशेस सच एज पोलिपेटेरस एंड लंग्स फिशेस including two species, that is Protoporus and Lepidosiren, the swim bladder is bilobed and ventral to the gut, while in Australian lungfish and rest of the bony fishes the swim bladder is single and dorsal to the gut. अब यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रिमिटिव बोनी फिशेस है जिसको हम क्या कहते हैं पोलिपेटेरस जिस तरह हमारे पास हो गया, और लंग्स फिशेस की दो स्पीशीज हमारे पास होगी, एक हमारे पास आ गई प्रोटोपोरस और एक लेपिडोसायरन. तो इनमें जो स्विम ब्लैडर होता है ये बाइलूब्ड होता है, इसके क्या होते हैं दो लूब्ड होते हैं एंड इट इज लोकेटेड वेंट्रल टू द गट. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक और स्पीशीज देखें ऑस्ट्रेलियन लंगफिश जिसको हम न्यूसेराटोडस कहते हैं, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द बोनी फिशेस, तो इनके अंदर जो स्विम ब्लैडर है वो क्या है सिंगल लूब है, ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड डॉर्सल टू द गट. इन सम फिशेस द स्विम ब्लैडर इज कनेक्टेड टू द गट बाय pneumatic duct and such fishes are called physostomous fishes, while in some fishes the connection between the gut and swim bladder is lost and such fishes are called physoclistous fishes. अब यहाँ पे अगर देखें जो एलिमेंट्री कैनाल या गट के साथ स्विम ब्लैडर की अटैचमेंट है, इस बेस पे भी हमारे पास फिशेस को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं फाइसोक्लिस्टस फिशेस और एक को हम क्या कहते हैं फाइसोस्टोमस फिशेस. ऐसी फिशेस जिनमें स्विम ब्लैडर जो है वो इनके एलिमेंट्री कैनाल या डक्ट के साथ यूनाइट है, कनेक्ट है बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक डक्ट, तो ऐसी फिशेस को हम कहते हैं फाइसोस्टोमस फिशेस. लेकिन ऐसी फिशेस जिनके अंदर जो स्विम ब्लैडर है वो उनके एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसी फिशेस को हम क्या कहते हैं फाइसोक्लिस्टस फिशेस. दिस डायग्राम इंडिकेट द स्विम ब्लैडर ऑफ फाइसोस्टोमस फिशेस.
अब यहाँ पे पहचान हमें कैसे हुई है कि ये फाइसोस्टोमस फिशेस का स्विम ब्लैडर है। यहाँ पे अगर देखें तो इसके साथ क्या है, यहाँ पे ये न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट है और इसी न्यूमेटिक डक्ट के साथ ये फिश के एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। और मेन जो फंक्शन इसका हमारे पास है स्विम ब्लैडर का, इट एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन इन द फिशेस। Digestive system of the fishes. Fishes possess well-developed tubular type of digestive system which consists of mouth, gill rakers, esophagus, stomach, pylorus, pyloric ceca, pancreatic tissues, liver, gallbladder, intestine and the anus. But not all these components are present in all the fishes. यानी यहाँ पे ये जो डिफरेंट हमने नेम मेंशन किए हैं फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स है वो हर एक फिश के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अ फिश डाइजेस्टिव सिस्टम इज अडॉप्टेड टू देयर फूड हैबिट्स। यानी जो डिफरेंट फिशेस के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन द फूड हैबिट्स, कि वो फिश किस तरह के फूड को इनटेक करती है। नंबर फर्स्ट, in carnivorous fishes the mouth is usually large with teeth on the jaw and gill raker are short. अब कार्निवोरस फिशेस में अगर हम माउथ को देखें तो इनका माउथ जो है वो लार्ज साइज का होता है एंड देयर जॉज कंटेन द टीथ एंड in addition to this their gills raker are short. On the other hand, in omnivorous fishes and herbivorous fishes the mouth is smaller and usually devoid of teeth except the pharyngeal teeth while gill rakers are larger. अब हम कार्निवोरस के साथ अगर ओमनिवोरस और हर्बिवोरस फिशेस को कंपेयर करें तो इन ओमनिवोरस और हर्बिवोरस फिशेस के अंदर माउथ का साइज जो है वो क्या है, स्मॉल है, और इनके अंदर टीथ भी जो है वो क्या है, एब्सेंट है एक्सेप्ट द फेरेंजियल टीथ, एंड ऑन द अदर हैंड दे पोजेस लॉन्गर गिल रेकर्स. द स्टमक in different group of fishes also shows variation. A stomach among different group of fishes, like carnivorous fish, the stomach is large, muscular and elastic for holding the large prey items, while in case of omnivorous fishes and herbivorous fishes the stomach is स्मॉल. यानी यहाँ पे भी कार्निवोरस फिशेस, ओमनिवोरस और हर्बिवोरस फिशेस के स्टमक के अंदर भी क्या है, वेरिएशन प्रेजेंट है. जो कार्निवोरस फिशेस है इनका स्टमक क्या है, लार्ज साइज का है. क्यों लार्ज साइज का है, कि ये जो फूड इनटेक करते हैं उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर फ्लैश ईटर. और प्रोटीन की डाइजेशन हमारे पास कहाँ पे होती है, स्टमक के अंदर होती है. तो इनके अंदर स्टमक का साइज जो है वो क्या है, लार्ज है. ऑन द अदर हैंड इन ओमनिवोरस फिशेस एंड हर्बिवोरस फिशेस इनके अंदर क्या है, स्टमक का साइज स्मॉल है. क्यों स्मॉल है, क्योंकि इनके अंदर जो फूड का लार्ज कंपोनेंट है वो क्या है, एक्वेटिक वेजिटेशन है. ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स है जिनकी डाइजेशन स्टमक में हमारे पास नहीं होती, किस में होती है, जाके इंटेस्टाइन के अंदर होती है. तो इनके अंदर स्टमक का साइज जो है वो स्मॉल है. इन नंबर ऑफ बोनी फिशेस सच एज गोबीज, मिनोस हैव नो स्टमक एंड द एसोफेगस इज डायरेक्टली ओपन इनटू द इंटेस्टाइन. यानी कुछ हमारे पास ऐसी भी फिशेस है जिनके अंदर स्टमक क्या है, टोटली एब्सेंट है, और उनका जो एसोफेगस है वो डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ, उनके इंटेस्टाइन के साथ. फिशेस विच लैक स्टमक हैव नो पाइलोरस. अब इसके साथ अगर हम देखें कि ऐसी फिशेस जिनके अंदर स्टमक जो है वो एब्सेंट है तो उनके अंदर क्या है, पाइलोरस भी एब्सेंट है. और इसी के साथ साथ स्टूडेंट आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि जो हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस है दे लैक फ्रॉम द पाइलोरिक सीका. यानी जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है इनके अंदर पाइलोरिक सीका जो है वो भी एब्सेंट होता है. In herbivorous fishes, the intestine is in the form of long and coiled tube-like structure, while in carnivorous fishes, it is in the form of short tube. अब कार्निवोरस और हर्बिवोरस फिशेस के इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या है, डिफरेंस मौजूद है. जो हमारे पास हर्बिवोरस फिशेस है उनका इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज और कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्निवोरस फिशेस के अंदर जो इंटेस्टाइन का लेंथ है वो क्या है, शॉर्ट है. So these are the variation in the digestive system of different fishes. Next one is circulatory system. Fishes possess well-developed closed type of circulatory system. Closed type of circulatory system mean when the heart pump the blood, it circulates throughout the body within the closed channel and do not come in direct contact with the body cells or tissue. The fishes have single circuit plan, which mean that the blood flow in only one pathway or one direction. That is from heart to gills, gills to body, and again from body to the heart.
अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये क्या करती है, फिश के ब्लड सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द हार्ट ऑफ द फिश। और एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि फिश के हार्ट के अंदर हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिश के हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं आता। द फिश हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द गिल्स। Inside the gills capillaries, exchange of gases occur. That is, oxygen diffuse from water into the blood capillaries of the gills, while carbon dioxide is diffused out. This oxygen-rich blood is then sent to all parts of the body in order to deliver oxygen to different cells and tissues of the body. And carbon dioxide from different cells and tissue is absorbed into the blood, and the oxygenated blood again enter into the heart, and the heart again send this oxygenated blood towards the gills. So the flow of blood in the fish occur in one way. That is why we say that in fishes there is single circuit plane. A typical fish heart has 4 chambers. यानी अगर हमारे पास एक टिपिकल फिश के हार्ट को देखें तो इसके हमारे पास क्या है, 4 चेंबर हैं। लेकिन अगर ये हम देखें विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द अरिकल एंड वेंट्रिकल, फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू अरिकल एंड वेंट्रिकल द फिश हार्ट हैज 2 चेंबर, दैट इज 1 अरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। These 2 diagrams represent the heart of 2 different class of fishes. The first diagram represents the heart of teleost fish, in which the first part is sinus venosus, the second one is atrium, the third one is ventricle, and the fourth one is bulbus arteriosus. While the second diagram represents the heart of shark, in which the first part is sinus venosus, just like the heart of teleost fish, the second one is atrium, the third one is ventricle, while the fourth one is cornus arteriosus. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टिलियोस्ट और जो दूसरी तरफ हमारे पास शार्क है उनके हार्ट के 4 चेंबर के अंदर क्या है, डिफरेंस है। जो टिलियोस्ट फिशेस हमारे पास है या जिसको हम बोनी फिशेस कहते हैं, उनके हार्ट में 4 चेंबर को हम क्या कहते हैं, बल्बस आर्टेरियोसिस, ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे पास शार्क है, शार्क के अंदर जो 4 चेंबर है हार्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नस आर्टेरियोसिस, ठीक है। दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस। नेक्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। Fishes possess well-developed endoskeleton. The osteichthyes are bony fishes. The endoskeleton is made up of bone. That is why they are called osteichthyes. And in the second group, chondrichthyes, the endoskeleton is made up of cartilage, and that is why they are known as chondrichthyes. यानी हमारे पास जो osteichthyes है उनके अंदर एंडोस्केलेटन किस चीज का बना है, बोन्स से मिलकर बना होता है, और जो chondrichthyes है उनका एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना है, कार्टिलेज से। इसके अलावा अगर हम थर्ड ग्रुप ऑफ फिशेस देखें जिसको हम एग्नाथा कहते हैं, दैट आर द प्रिमिटिव फिशेस, उनका एंडोस्केलेटन जो है वो भी कार्टिलेज से बना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फिशेस आर किडनीज, यानी किडनीज जो है वो फिश के मेन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बट देयर आर सम अदर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन फिशेस सच एज गिल्स, स्किन, इंटेस्टाइन। All the fishes possessed pair of kidneys which lies above the body cavity and ventral to the vertebral column. 2 basic types of kidneys are recognized in different groups of fishes, and these 2 types of kidneys are pronephros and mesonephros. यानी जो डिफरेंट ग्रुप है हमारे पास फिशेस की, उनमें 2 तरह की किडनीज जो है वो प्रेजेंट है। एक किडनीज को हम क्या कहते हैं, प्रोनेफ्रोस, और सेकेंड टाइप ऑफ किडनीज को हम क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रोस। अब प्रोनेफ्रोस और मीजोनेफ्रोस किडनीज के दरमियान डिफरेंस क्या है। प्रोनेफ्रोस किडनी इज फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, यानी फिशेस के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो किडनी पाई जाती है वो क्या होती है, प्रोनेफ्रोस किडनी होती है। बट लेटर ऑन दिस प्रोनेफ्रोस किडनीज बिकम डीजेनरेट, यानी लेटर स्टेजेस में ये प्रोनेफ्रोस किडनी क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ फिशेस ऐसी है जिनके अंदर प्रोनेफ्रोस किडनी जो है क्या होती है, retain होती है throughout the life. There are certain group of fishes which retain pronephros kidneys throughout the lives, such as lamprey, hagfish, and some of the cartilaginous fishes. On the other hand, pronephros kidney is found in majority of the fishes.
इन अडल्ट स्टेजेस। यानी जो अडल्ट स्टेजेस में मेजॉरिटी ऑफ फिशेस के अंदर किडनी पाई जाती है वो कौन सी किडनी होती है? मीजोनेफ्रॉस। And another difference between the pronephros and mesonephros kidney is that the pronephros kidney contain 3 to 12 nephridia. On the other hand, the mesonephros kidney contain 50 to 10,000 nephridia. Next one is nervous system. Fishes possess well-developed nervous system which is consist of central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system of fishes is consist of brain and spinal cord, while peripheral nervous system is composed of nerves which arises from the brain and spinal cord. In addition to this, the fishes contain only 10 pair of the cranial nerves. Next one is reproduction in the fishes. There are 3 different types of reproduction in the fishes. Number 1, bisexual. Number 2, hermaphroditism. And number 3, parthenogenesis. First of all, we will take the bisexual. It is the most common type of reproduction in the fishes, in which sperm and eggs are developed in separate male and female individual. And in this case the fertilization may be external or internal. नहीं, अगर यहाँ पे हम बाइसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में देखें तो ये फिशेस के अंदर क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें मेल के बॉडी के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं? एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होगी? एक्सटर्नल भी हो सकती है, दैट इज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और इट मे बी इंटरनल, दैट इज इनसाइड द फीमेल फिश बॉडी. The second type of reproduction is hermaphroditism. Organism that contain both the male and female reproductive organ. Or in other words, we can say that both the testes and ovaries are present within the same individual. And there are about 21 families of fishes which are hermaphrodite. Hermaphrodite species are further divided into synchronous एंड एसिंक्रोनस. यानी जो हमारे पास हर्माफ्रोडाइट फिशेज है इनको फर्दर हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं सिंक्रोनस और एक को हम कहते हैं एसिंक्रोनस. सिंक्रोनस आर दोस फिश स्पीशीज इन विच बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज आर एक्टिव एट द सेम टाइम. सिंक्रोनस हमारे पास कौन सी फिश स्पीशीज है? ऐसी फिश स्पीशीज है जिनमें एट अ टाइम टेस्टिस और ओवरी जो है वो अपने एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल परचेस, डार्टर्स एंड बासेस. द सेकेंड ग्रुप आर एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस आर दोज फिश स्पीशीज दैट आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सेक्स टू अनदर विद एज. अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अगर देखें तो इसमें जो एक फिश है वो अगर अर्ली लाइफ स्टेजेस में मेल के तौर पर एक्ट करता है तो लेटर स्टेजेस में वो क्या होते हैं? फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. या अगर शुरू के स्टेजेस में वो फीमेल के तौर पर एक्ट कर रही है तो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में वो मेल के अंदर क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है. एंड द एसिंक्रोनस फिशेस आर दैट इज वाई डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. दैट इज द प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस. First one is protandrous. Protandrous behaves like male when young and change to female in the later part of life. यानी प्रोटेंड्रस हमारे पास के ऐसी स्पीशीज है जो कि यंग एज में मेल के तौर पर एक्ट करती है, while in later part of life they are converted into female. For example, clownfish and Maxini. While the second group is protogynous fishes. Protogynous behave like female when young and change into male in the later part of life. यानी जो हमारे पास प्रोटोगाइनस है they are opposite to that of the protandrous. क्योंकि इस केस में हमारे पास ऐसी जो फिश स्पीशीज होती है वो यंग एज में फीमेल के तौर पर एक्ट करती है, बट इन लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ दे बिकम चेंज इनटू मेल. फॉर एग्जांपल ग्रुपर्स एंड पैरट फिशेस. While the third type of reproduction in the fishes is parthenogenesis. Parthenogenesis is the development of young one without fertilization. Although mating does take place, but the sperm serves only to trigger the egg cell to develop into adult. अब यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस के केस में अगर देखें तो फर्टिलाइजेशन
नहीं हो रही है, मीन देयर इज नो यूनियन ऑफ द स्पर्म egg to form the zygote. But in this case, the sperm is essential to activate the egg to develop into the adult organism. But in this case, the sperm cell eventually degenerate and do not take part in the heredity. यानी जो sperm है वो egg को सिर्फ ट्रिगर करता है कि वो एक adult organism के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लेकिन बाद में वो स्पर्म क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, उसका हेरिडिटी के अंदर कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि इस केस में स्पर्म जो है वो एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं होता. सो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस आर ऑलवेज फीमेल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेल का स्पर्म है वो एक के साथ यूनाइट ही नहीं हो रहा, तो रिजल्ट में जितने भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे फिशेस के अंदर डेवलप होंगे वो सारी की सारी हमारे पास क्या होगी, फीमेल होगी. अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्थिनोजेनेसिस के रिजल्ट में अगर सारी की सारी हमारे पास फीमेल फिशेस जो है वो डेवलप हो रही है, तो उनके एक्टिवेशन के लिए जो स्पर्म है वो कहां से आएगा. उसका आंसर आपके पास क्या है, सच फिशेस मेट विद द मेल ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ओनली टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. यानी ये स्पर्म जो है वो मेटिंग के लिए किससे लेती है, फ्रॉम दैट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ पाइसिलिया फार्मोसा विच इज अ यूनिसेक्सुअल फिश स्पीशीज, इट ऑलवेज मेट विद द पाइसिलिया लेटिपिना. यहां पे ये जो हमारे पास पाइसिलिया फार्मोसा है इसके अंदर ये सारी की सारी क्या होती है, फीमेल प्रोड्यूस होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन के दौरान ये किसके साथ मेट करती है, इट मेट विद ए क्लोजली रिलेटेड फिश स्पीशीज दैट इज द पाइसिलिया लेटिपिना. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशेस. थैंक यू.